Hi everyone, how are you? Hope you're doing good. Okay, so आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट. सो हैव यू एवर हर्ड दीज वर्ड्स बिफोर? यस, 11th स्टैंडर्ड में हमने इसको थोड़ा बहुत देखा हुआ था, लेकिन वो तो 11th स्टैंडर्ड था सर. उस बात को तो बहुत समय बीत चुका है, तो हमें नहीं मालूम कि what is the concept of balance of payment. So let us see that once again on your screen. Is the meaning देखते हैं. Accounting statement showing the value of imports and exports of tangible and intangible goods during a year. अब एक क्वेश्चन, sir, what is the meaning of imports? We know that purchase beyond the geographical boundaries is imports and sales beyond the geographical boundaries is exports. तो import export term यूज कहां पे होता है? इंटरनेशनल ट्रेड में. ओके, उसके बाद टेंजिबल एंड इंटेंजिबल. तो ये बात हम सबको मालूम होनी चाहिए, लेकिन फिर भी एक बार दोहरा देता हूं. टेंजिबल मीन्स एनीथिंग दैट यू कैन सी, टच एंड फील, दैट इज गुड्स. और intangible मतलब you cannot see, you cannot touch, you can only feel, that is what? Services. So tangible and intangible मतलब क्या? Goods and services. Okay, जब ये import export of goods as well as services एक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होता है, उस स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं. ठीक है, चलिए. बैलेंस ऑफ पेमेंट has a credit entry and a debit entry. All receipts are credited and all payments are debited. तो हमें अच्छे से मालूम है that whenever we see a receipt that is an income, it is to be credited, and whenever we see payment that is an expense, it is debited. So accounts में आप ये already सीख चुके हो. under nominal account, debit all expenses and losses and credit all incomes and gains. उसी के बेसिस पे हमें बनाना है बैलेंस ऑफ पेमेंट. ओके, चलिए आगे देखते हैं. टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, लेट अस सी देम इन डिटेल. दे आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. वन इज बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड द अदर इज अनबैलेंस्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट. अब ये क्या होता है? बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट कब आता है? पढ़ो. when the value of entries on credit side equals that on the debit side. मतलब receipt is equal to payment. जितना पैसा आया उतना ही पैसा चला गया. receipt is equal to payment, income is equal to expenses. that is nothing but balanced balance of payment. अगर अकाउंटिंग लैंग्वेज में बात करें, no profit no loss, whatever was the income they are your expenses. Clear? और अगर हम अनबैलेंस की तरफ जाएंगे तो देखो क्या लिखा है उसमें. when the value of entries on credit side is not equal to that on the debit side. मतलब डेबिट साइड की एंट्री और क्रेडिट साइड की एंट्री सेम नहीं है, तो वो क्या बनेगा? अनबैलेंस्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट बनेगा. मींस receipt is not equal to payment. Now this further leads to two possibilities. Sir, receipt can be greater than payment also and receipt can be less than payment also. So receipt is greater than payment, so this results in surplus in balance of payment. क्योंकि पैसा आपके पास ज्यादा आया और खर्चा आपने कम किया, तो कुछ सेविंग्स होगा. उसको सेविंग्स नहीं बोलने का, क्या बोलने का? सरप्लस बोलने का. बिकॉज we are able to generate more income by exports and we are incurring less expenditure on imports. In that situation, receipt will be greater than payment and that will result into surplus balance of payment. दूसरी possibility on the right side, receipt is less than payment. मतलब आपने receipts कम generate करी और पेमेंट ज्यादा हो गया. ऐसा कब होगा? जब आपके एक्सपोर्ट्स कम होंगे और आपके इंपोर्ट्स ज्यादा होंगे.
सो रिसीट जनरेट कम हुई बाय लेस एक्सपोर्ट्स और पेमेंट्स ज्यादा जनरेट हो गए बाय डूइंग मोर इंपोर्ट्स. दिस विल रिजल्ट इनटू अ सिचुएशन ऑफ डेफिसिट, क्योंकि पैसा कम मिला और खर्चा ज्यादा करना पड़ा. सो रिसीट इज लेस देन पेमेंट्स, रिजल्टिंग इनटू अ डेफिसिट. तो ये मेन लेआउट आपको क्लियर हो गया. बैलेंस ऑफ पेमेंट इनटू टू पार्ट्स, बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड अनबैलेंस्ड. बैलेंस मतलब रिसीट इज इक्वल टू पेमेंट और अनबैलेंस्ड मतलब रिसीट नॉट इक्वल टू पेमेंट. Receipt not equal to payment results into two situation. Receipt may be greater than payment or receipt may be less than payment. So receipt is greater than payment, surplus, and receipt is less than payment, then deficit. Clear? चलिए. From a purely accounting point of view, balance of payment always balances, but in reality there can be a deficit in balance of payment as well as a surplus in balance of payment. अब ये स्टेटमेंट आपसे क्या कहना चाहता है? बैलेंस शीट अकाउंट्स में बैलेंस शीट आपकी हमेशा टैली होनी चाहिए. वो अलग बातें होती नहीं है, लेकिन वो तो एरर के कारण नहीं होती ना. इफ देर आर नो एरर्स देन बैलेंस शीट शुड ऑलवेज गेट टैलीड. C plus L is equal to A. तो बैलेंस शीट हमेशा बैलेंस होती है. लेकिन क्या बैलेंस शीट में प्रॉफिट नहीं होता, लॉस नहीं होता? होता है. प्रॉफिट एंड लॉस से जो प्रॉफिट या लॉस निकला वो ट्रांसफर कहां पे हुआ? रिजर्व्स में. वो रिजर्व्स आपने कहां दिखाए? बैलेंस शीट में ही तो दिखाए हैं. सो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज वेरी सिमिलर टू बैलेंस शीट. From a purely accounting point of view, balance sheet always gets tallied. वैसे ही balance of payment should always be balanced, because every transaction will be having twofold effects, debit and credit. So balance of payment में ये दोनों transactions दिखने चाहिए. तो अपने आप balance of payment will always get balanced. From which point of view? Accounting point of view. लेकिन जैसे बैलेंस शीट में लॉस या प्रॉफिट आता है, वैसे ही बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी डेफिसिट या सरप्लस आ सकता है इन रियलिटी. क्लियर? सो बैलेंस ऑफ पेमेंट का ये पूरा कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हुआ? ओके. कुछ भी डाउट है तो अभी के अभी फोन उठाओ और व्हाट्सएप पे डाउट पूछो या मुझको कॉल करो. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. अकाउंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. ठीक है, अब देखते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की अकाउंटिंग कैसे होती है, उसके कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं. ओके, पहला करंट अकाउंट. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? दिस अकाउंट records the credit and debit entries for the following transactions. Transaction number 1, trade in merchandise goods. merchandise मतलब tradable goods. ठीक है, अब इसमें क्या? receipts from exports are recorded on the credit entry and payment for imports are recorded as debit entry. Credit all incomes and gains, debit all expenses and losses. ठीक है, so export of goods will be recorded on the credit side. That is a good sign for us, क्योंकि ये हमारे लिए इनकम जनरेट कर रहा है. और दूसरा import of goods will be recorded on the debit side. ये गलत है हमारी कंट्री के लिए, क्योंकि पेमेंट उतना बढ़ रहा है. आगे देखते हैं. सम टोटल ऑफ दिस सेक्शन ऑफ करंट अकाउंट इज नोन एज बैलेंस ऑफ ट्रेड. खाली इन दोनों का समेशन अगर कर लेंगे, टोटल कर लेंगे, तो ये हमें क्या देगा? बैलेंस ऑफ ट्रेड देगा, या ट्रेड बैलेंस भी इसको बोल सकते हैं. ठीक है, अब इसी का डेमो आपकी टेक्स्ट बुक में बता के रखा है, तो वहां जाके देखते हैं कि व्हाट इज दिस बैलेंस ऑफ ट्रेड. तो टेक्स्ट बुक में आपको ये पेज देखने को मिलेगा. ओके, क्या लिखा है? हाइपोथेटिकल एग्जांपल ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, जिसमें क्रेडिट आइटम्स क्या है? रिसीट्स. डेबिट आइटम्स क्या है? पेमेंट्स. फिर आएगा बैलेंस, मतलब डिफरेंस बिटवीन credit and debit will give you the
बैलेंस। अब करंट अकाउंट क्या लिखा है, रुपीज इन क्रोर्स, क्योंकि हम कंट्री की बात कर रहे हैं। अब उसमें देखो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स 200, जो हमने अभी देखा। मर्केंडाइज एक्सपोर्ट मतलब ट्रेडेबल एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स, इट इज हाउ मच 200। मर्केंडाइज इंपोर्ट्स इज हाउ मच 300। एकदम इंडिया का ही केस है जहां पे एक्सपोर्ट्स कम और इंपोर्ट्स ज्यादा। सो 200 एंड 300, व्हाट इज द ट्रेड बैलेंस, 100। क्यों, कैसे आया, -100। 200 इज द इनकम, 300 इज द एक्सपेंस। इनकम कम, एक्सपेंस ज्यादा, तो रिजल्ट क्या आएगा, डेफिसिट। और डेफिसिट को हम कैसे बताएंगे, नेगेटिव में बताएंगे। ठीक है, इसके आगे नहीं बढ़ना है। अभी हमने थियरी में क्या पढ़ा, ट्रेड बैलेंस, तो प्रैक्टिकली भी मैंने आपको क्या दिखलाया, ट्रेड बैलेंस। अब वापस थियरी पे जाएंगे, आगे देखते हैं। मर्केंडाइज इंपोर्ट्स कैन बी ग्रेटर देन मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स, जो हमने अभी देखा। तो उस सिचुएशन को हम क्या बुलाएंगे, डेफिसिट बुलाएंगे, विच इज ऑलवेज नेगेटिव। ओके, उसके बाद मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स कैन बी ग्रेटर देन मर्केंडाइज इंपोर्ट्स, तो दैट रिजल्ट्स इनटू अ सरप्लस, तो आपका आंसर पॉजिटिव में आएगा। और कहीं अगर इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स दोनों सेम है तो इट इज कॉल्ड एज बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड, जिसका आंसर 0 आएगा, मतलब इट इज एट पार। इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स आर द सेम, ना पोजीशन फेवरेबल है ना अनफेवरेबल है, ना ही वो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, तो वो क्या है, न्यूट्रल। और न्यूट्रल क्या होता है, 0। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। ट्रेड इन इनविजिबल्स और सर्विसेज। ओके, इनविजिबल गुड्स मतलब सर्विसेज। देखते हैं, द इनकम्स फ्रॉम इनविजिबल्स आर रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड एंड पेमेंट्स ऑन द डेबिट साइड। सो कंबाइंड बैलेंस ऑफ 1 and 2 is called the current account balance। मतलब क्या, exports of goods plus services recorded on the credit side, import of goods plus services recorded on the debit side, दोनों का टोटल आपको क्या देगा, करंट अकाउंट बैलेंस देगा। तो आइए देखते हैं करंट अकाउंट बैलेंस को प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है ऑन योर स्क्रीन। तो लास्ट पॉइंट में हम यहां तक पहुंचे थे, ट्रेड बैलेंस वाज -100। अब उसके नीचे देखो, रेड डॉट्स के नीचे देखो, सर्विसेज एक्सपोर्टेड 100, इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव्ड 100, यूनिलैटरल रिसीट्स 200। यूनिलैटरल मतलब एक तरफा ट्रांजैक्शन, receipts that are coming in for some services that were provided are what, unilateral receipts। ओके, अब टोटल अगर आप देखेंगे 100, 100 एंड 200, तो कितना होता है 400। लेकिन मत भूलो ऊपर क्या था, मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स 200 का। सो इन चारों का टोटल कितना आएगा, 600 आएगा। सिमिलरली ऑन द डेबिट साइड, सर्विसेज इंपोर्टेड, क्योंकि सर्विस इंपोर्ट करोगे तो पेमेंट करना पड़ेगा। फिर इन्वेस्टमेंट मनी पेड 200 रुपीज, हमने इन्वेस्टमेंट बाहर वालों को किया, दैट इज मनी इज गोइंग आउट एज ए रिजल्ट ऑफ पेमेंट, सो दैट इज शोन ऑन द डेबिट साइड। यूनिलैटरल पेमेंट्स, यूनिलैटरल रिसीट्स अगर इनकम है तो यूनिलैटरल पेमेंट्स आपके एक्सपेंस होंगे, तो वो 100 वहां पे आ गया। अब इसका अगर आप टोटल करेंगे 200, 200 और 100, तो 500 आएगा। लेकिन मत भूलो ऊपर क्या था, मर्केंडाइज इंपोर्ट्स 300, सो 500 और 300 का टोटल कितना आया, 800 आया। अब करंट अकाउंट बैलेंस अगर ढूंढना है तो ये 600 और 800 जो आया ना, उनका डिफरेंस ढूंढो, दैट इज हाउ मच, 200, एंड दैट इज ऑल्सो नेगेटिव। नेगेटिव क्यों, क्योंकि 600 is our receipts and 800 is our payments, 600 is less than 800, less by how much, 200, less by how much, 200, 200 is negative, that is nothing but a deficit। so यहां तक हम पहुंचे तो हमारे सामने क्या आ गया, करंट अकाउंट बैलेंस आ गया। अब
आगे बढ़ते हैं, थियरी पे वापस जाते हैं ऑन योर स्क्रीन। नेक्स्ट अकाउंट इज कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट हो गया, अब दूसरा पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इज कैपिटल अकाउंट। लेट अस सी दैट receipts and payments from transactions of assets like bonds, shares, gold, capital loans, etc. and other forms of fixed capital are included. So capital account में capital transactions होंगे। कैपिटल को कैसे हासिल करते हैं आपने OCM में अच्छे से देखा है। borrowed sources and owned sources। ओन्ड सोर्सेज में क्या आता था? शेयर्स। शेयर्स वेर ऑफ टू टाइप्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स। और बोरोड सोर्सेज में क्या क्या आता था? लोन्स हैं, बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन। यस और नो? सो जो भी पैसों की लेन देन होगी फॉर बाइंग द असेट्स, those all transactions are going to be in which account? कैपिटल अकाउंट, जहां पर पैसा लंबे समय के लिए दिया गया है या तो लिया गया है, दोनों ही कैपिटल अकाउंट में रिफ्लेक्ट होंगे। सो भूल जाओ अब गुड्स सर्विसेज जो आप रेगुलरली ट्रेड करते थे। अब हम फोकस करेंगे लोन्स पे, कैपिटल पे, शेयर्स पे, बॉन्ड्स पे, डिबेंचर्स पे, सिक्योर्ड लोन पे, अनसिक्योर्ड लोन पे। और ये सारी चीज के लिए एक अलग से अकाउंट खुला हुआ है जिसको हम कैपिटल अकाउंट बुलाते हैं। आपने अकाउंट्स में भी ये चीजें देखी हैं। पार्टनर जब कैपिटल लाता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ऑन फिक्स्ड बेसिस, दैट गोज टू विच अकाउंट? कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर से जुड़े हुए, पार्टनर से संबंधित ऑल ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू पार्टनर्स रेगुलर फ्लो was reflected in which account? करंट अकाउंट, ताकि कैपिटल डिस्टर्ब ना हो और करंट पोजीशन भी हमको मालूम पड़ती जाए फ्रॉम करंट अकाउंट। यस और नो? सो कैपिटल अकाउंट विल इंक्लूड ओनली कैपिटल ट्रांजैक्शंस, याद रखना। ओके अब करंट अकाउंट बैलेंस और कैपिटल अकाउंट बैलेंस दोनों ऐड करेंगे तब जाके आपको क्या मिलेगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। इन शॉर्ट, summation of current account and capital account is called balance of payments. Understood? चलिए तो इस कैपिटल अकाउंट को हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा ऑन योर स्क्रीन। कैपिटल अकाउंट राइट साइड पे ध्यान देना। ओके, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 200, शॉर्ट टर्म बोरोइंग 100, सेल ऑफ गोल्ड 100, सब टोटल कैपिटल अकाउंट का सब टोटल 200 प्लस 100 प्लस 100 इज 400। क्लियर? फिर डेबिट साइड पे आ जाओ। लॉन्ग टर्म लैंडिंग, क्योंकि पैसा बाहर जा रहा है 80, शॉर्ट टर्म लैंडिंग अगेन पैसा बाहर जा रहा है 60, परचेज ऑफ गोल्ड पैसा बाहर जाएगा 50, तो इसका टोटल कितना आया? 190। क्लियर? अब एरर्स एंड ओमिशंस, सस्पेंस अकाउंट जैसे होता है वैसे कुछ ट्रांजैक्शंस उन्होंने उस कैटेगरी में डाल के रखे हैं विच विल शो द एरर्स एंड ओमिशन। वो कितना बता के रखा है? 10। तो अब इसका टोटल कितना आएगा? 190 प्लस 10 दैट इज 200। अब हमें ढूंढना है बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। वो कैसे मिलेगा? क्रेडिट साइड का टोटल कितना आया? 400, डेबिट साइड का टोटल कितना आया? 200, 400 माइनस 200 कितना आएगा? 200 पॉजिटिव। अब ध्यान देना, बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट राइट साइड पे आप देख सकते हो प्लस 200 है, ये प्लस 200 और वो वाला करंट अकाउंट का माइनस 200 हमेशा एक दूसरे के सामने सेट ऑफ होंगे फ्रॉम अ प्योरली अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। सो करंट अकाउंट में जितना नेगेटिव उतना कैपिटल अकाउंट में पॉजिटिव आ ही जाएगा, और करंट अकाउंट में जितना पॉजिटिव उतना कैपिटल अकाउंट में नेगेटिव आ ही जाएगा। ये डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम की बदौलत है। एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू इफेक्ट्स, वन इज डेबिट एंड द अदर इज क्रेडिट। सो डेबिट शुड मैच द क्रेडिट, और अगर ये मैच नहीं हो रहा तो देयर इज सम एरर, देयर इज सम ओमिशन,
तो जो 10 रुपया अपन ने लिया था ना, कैसे लिया था, उसको 200 तक पहुंचाना था इसीलिए। और ये जो 200 पॉजिटिव आया, दैट इज इंक्लूडिंग 10 ऑफ एरर एंड ओमिशन। सो एरर ओमिशन आपको पहले से मालूम नहीं पड़ेगा, आपको पहले बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट निकालना पड़ेगा, और जब वो एक दूसरे के सामने सेट ऑफ नहीं होंगे तो जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो अमाउंट कहां जाएगा, एरर्स एंड ओमिशंस में जाएगा। क्लियर? चलिए, सो टोटल ऑफ रिसीट आ गया 1000। सर 1000 कैसे आया? तो सब टोटल करंट अकाउंट का देखो कितना था, 600, और सब टोटल कैपिटल अकाउंट का कितना है, 400। 600 और 400 कितना हो गया, 1000। ओके, और टोटल पेमेंट आप देखो, डेबिट साइड का करंट अकाउंट का सब टोटल कितना था, 800, और डेबिट साइड का कैपिटल अकाउंट का टोटल कितना है, 200। तो 800 और 200 वो भी कितने हुए, 1000 हुए। सो 1000 एक दूसरे के सामने चॉप ऑफ हो गए, और इसीलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट फ्रॉम अ प्योरली अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू इज ऑलवेज बैलेंस्ड। उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। और अगर नहीं आ रहा, मतलब कुछ एरर एंड ओमिशन है, तो वो फिगर आपको उस कैटेगरी में डालना पड़ेगा। ठीक है, अंडरस्टूड? तो अब बात आपको समझ में आई कि टोटल ऑफ करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट इज इक्वल टू बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। देयर आर सर्टेन फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑन योर स्क्रीन। These are those factors which affect the imports, exports, movement of capital, factors of production, investment, lending, etc. मतलब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस बहुत सारे होते हैं और अलग अलग पर्पसेस से होते हैं। तो देयर आर मेनी फैक्टर्स विच मे इन्फ्लुएंस द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। जैसे कि हम सब जानते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। सो लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर तो इजीली मूवेबल है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लेकिन उनकी ज्योग्राफिकल मोबिलिटी को लेकर भी ढेर सारे फैक्टर्स होते हैं, और इसीलिए इनके डिमांड और सप्लाई में चेंजेस लगातार आते रहते हैं। इन चेंजेस के कारण ही इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस की क्वांटिटी, उसके वॉल्यूम को ये इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डेफिसिट और सरप्लस can arise due to such factors. We know that there can be a loss or there can be a gain due to such factors. अगर यही फैक्टर्स हमारे फेवर में हैं तो हमें गेन होगा, और ये फैक्टर्स अगर हमारे खिलाफ हैं तो हमें लॉस भी हो सकता है। फिर impact of such factors depends on level of economic development of a nation. मतलब आपका कंट्री किस हद तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आगे बढ़ चुका है, ये भी डिसाइड करेगा कि ये फैक्टर से हमारा फायदा होगा या नुकसान। अगर फायदा होगा तो कितना, और नुकसान होगा तो कितना। ये जो एक्सटेंट है ऑफ लॉस और गेन, दैट डिपेंड्स ऑन होम, ऑन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। क्लियर? दीज फैक्टर्स आर, पॉइंट नंबर 1, एक्सचेंज रेट। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक्सचेंज रेट। कौन सा एक्सचेंज रेट? फॉरेन एक्सचेंज रेट। डॉलर का वैल्यू रुपी के सामने क्या है, पाउंड का वैल्यू डॉलर्स के सामने क्या है, येन का वैल्यू मलेशियन रिंगे के सामने कितना है। अगर अलग अलग कंट्रीज की करेंसी को हम एक्सप्रेस करने बैठे तो नीचे वाला पिक्चर आपको दिख रहा है, ये कौन सा पिक्चर है, रेट का पिक्चर है, जहां पे continuously every moment the foreign exchange rate is changing. हर सेकंड में ये रेट चेंज होता है। ये कौन सा रेट है बेटा, फॉरेन एक्सचेंज रेट है। ये कैसे डिसाइड होता है, इसमें चेंजेस कैसे आते हैं, इसका क्या कंसेप्ट है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने ही वाले हैं। ओके, इन डिटेल, डोंट वरी। उसके बाद प्राइसेस ऑफ ट्रेडेबल गुड्स इन होम कंट्री एंड इन फॉरेन कंट्रीज। मेरे यहाँ कोई गुड्स कितने में बन रहे हैं, आपके यहाँ कोई गुड्स कितने में बन रहे हैं, वो भी डिसाइड करेगा कि कौन कितना फायदा लेके जाएगा। क्योंकि हम पढ़ के रहे हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो कोई प्रोडक्ट अगर मैं बहुत सस्ता बना रहा हूं, दुनिया में
सबसे सस्ता प्रोडक्ट मैं बना रहा हूं तो मेरा ट्रांजैक्शन सबसे ज्यादा होगा, मेरा एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा होगा, तो अकॉर्डिंगली मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में आएगा। और कहीं अगर मैं कोई सामान अच्छे से नहीं बना पा रहा हूं तो मेरे इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि मुझे उसी सामान को दूसरी कंट्री से खरीदना पड़ेगा, क्योंकि खुद बनाने की ताकत तो है नहीं। सो एक कंट्री के अंदर कौन कौन से गुड्स कौन कौन सी प्राइसेस पे बन रहे हैं वो डिसाइड करेगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में उसका कितना फायदा होगा और उससे कितना नुकसान होगा। ठीक है, उसके बाद variety and quality of tradable goods. A country believes in providing a good quality, in providing variety of products in which customers find lot of value. तो क्या होगा, उसके गुड्स का डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि वैरायटी है, वैल्यू है, साथ साथ स्टार क्वालिटी भी है। सो ऐसा खतरनाक कॉम्बो ऑफ गुड्स आपको इस कंट्री के अलावा कहीं और नहीं मिलेगा। अगर इस बात को आपने दुनिया को समझा दिया कि मेरे पास ही सबसे बढ़िया वैरायटी, सबसे बढ़िया क्वालिटी, सबसे ज्यादा वैल्यू ऑफ मनी वाले गुड्स हैं, तो मेरे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। आज चाइना देखो कहां से कहां पहुंच गया, मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया पूरे वर्ल्ड का, क्योंकि उसके पास वो क्वालिटी है, वो वैल्यू है, वो वैरायटी है जो दुनिया को चाहिए। तो उसके बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा है और इंडिया का एक्सपोर्ट्स काफी कम है इफ यू कंपेयर आर एक्सपोर्ट्स विथ चाइना देन। ओके, अंडरस्टूड। सो जितना वैरायटी होगा, जितना क्वालिटी होगा ट्रेडेबल गुड्स का, उतना आपका ट्रेड और बढ़ेगा, आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में आएगा। ओके, उसके बाद इनएविटेबल इंपोर्ट्स, मतलब ऐसे इंपोर्ट जो बेहद जरूरी हैं। कोई ऐसे प्रोडक्ट्स अगर आप खरीदते हो किसी और कंट्री से जिसको खरीदे बगैर आपको नहीं चलता, तो आपके इंपोर्ट्स को आप कम नहीं कर सकते, क्योंकि ये कौन से इंपोर्ट्स है, इनएविटेबल मतलब अनअवॉइडेबल, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली नेसेसरी। ओके, उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपनी कंट्री में ज्यादा, तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो हम इंपोर्ट ऑफ असेंशियल गुड्स सर्विसेज ज्यादा लेंगे क्योंकि अपने कंट्री के डेवलपमेंट के लिए ये चीजें जरूरी हैं, या फिर अपना डेवलपमेंट अपने बलबूते पे ही चल रहा है तो हम उतने केपेबल बन जाएंगे कि किसी और कंट्री की डिमांड को हम पूरा कर सकें। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कैसे हो रहा है एक कंट्री में, उस बात से भी डिसाइड होगा कि व्हाट इज गोइंग टू बी द पोजीशन इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। इफ इट इज सेल्फ सफिशिएंट डेवलपमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट विल बी फेवरेबल। इफ इट इज डिपेंडेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देन बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी नेगेटिव, इट मे रिजल्ट इनटू अ डेफिसिट। ओके, उसके बाद लीगल रेस्ट्रिक्शंस, मतलब अपने यहां कानून कैसा है, हम सामने वाली कंट्री के साथ ट्रेड कितना ओपनली कर रहे हैं, इस बात से भी डिसाइड होगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में होगा या डेफिसिट। अगर हमारे यहाँ बहुत सारे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, पॉलिसीज हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जिस कारण से सामने वाली कंट्री को हमारे साथ ट्रेड करने की इच्छा ही ना हो, तो अपना इंटरनेशनल ट्रेड अच्छे से नहीं होगा। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में जाएगा। और अगर ओपनली हम सारी कंट्रीज का स्वागत कर रहे हैं कि आओ हमारे साथ ट्रेड करो, तो उस केस में हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में भी आ सकता है। सो अपने कंट्री का लॉ क्या कहता है, इज इट फेवरिंग इंटरनेशनल ट्रेड, गुड, सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट। इफ इट इज अगेंस्ट इंटरनेशनल ट्रेड, देन आई एम सॉरी, बैलेंस ऑफ पेमेंट मे रिजल्ट इनटू अ डेफिसिट आल्सो। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 7, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज अपने यहाँ कैसी है। अपने यहाँ कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, एजेंसी, वेयर हाउसिंग, ये सब कैसा डेवलप हुआ है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो इंटरनेशनल ट्रेड आसानी से होगा, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज नहीं है तो किसी और कंट्री को हमारे साथ ट्रेड करने की इच्छा नहीं होगी।
ठीक है, समझ में आ गया। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो बैलेंस ऑफ पेमेंट को असर कर सकते हैं पॉजिटिवली और नेगेटिवली। ठीक है, तो बस फिर आज के लिए इतना ही। ओके बाय।